Lalji Tandon. Please, now you go on. देखिए ये नीचे करिए, ये नीचे करिए, please. You're not supposed to do this and go back to your seat. You've done this. You have done it once. Now you please sit down. I gave you an opportunity to speak. Don't talk to them. आप प्लीज बोलिए। महोदया, और सिर्फ लालजी टंडन जी की बात जाएगी रिकॉर्ड में। सप्लीमेंट्री डिमांड्स किसी विभाग में कामकाज के ऊपर निर्भर करती है। अगर वहाँ विकास हो रहा है तो धन की जरूरत ज्यादा होगी और उन्हें जो बजट में धन आवंटित है उससे ज्यादा चाहिए होता है या नई योजनाएं शुरू करने के लिए होती है। लेकिन जो रेलवे की डिमांड्स आई हैं इसके हमें कम से कम उन बातों से देखना चाहिए कि जो माननीय रेल मंत्री ने यहाँ पर अपना पहला बजट पेश करते हुए वादे किए थे, उनकी समीक्षा भी होनी चाहिए कि क्या हम लक्ष्य के करीब पहुँच रहे हैं, क्या कुछ काम हो रहा है, कोई नए काम शुरू करने के पहले जो हमने काम लिए थे उनमें से कुछ काम हो रहे हैं या नहीं, उनकी प्रोग्रेस क्या है, किस स्टेज पर हैं, वो नीतियाँ क्या हैं, इनके बारे में कोई चर्चा होती नहीं। तो माननीय मैं 1 minute. Yes. खाली just listen to me. You said you want to say something. Well, I will give you an opportunity. Let the debate go on railways. After this, in the 0 hour. Yes. No, please don't. No, don't talk like. No, you can't do that. Please, how can you do? What are you doing? Please don't. This is the decency. No, no, आप नहीं, इस तरह नहीं बात। आप बैठिए। What are you doing? Please, what are you doing? Leader of the House. Please, I will give you a chance. Yes, honorable member, I will give you a chance. Let this go on. After this, I will give you a chance. But let this go on. No, please, but don't get so angry. Please. Don't lose your temper. Don't lose your temper. I know you have something to say. Don't lose your temper and don't also give up the decorum of the house. Both the things you must observe. You should observe the decorum. Please take your seat. I will give you a chance. Yes, I know whatever is happening, but this. Please, I will give you a chance. You please go back. Yes, all you go. All right, you go back. You go. No, you go back to your seat. Please, don't make an argument here. I'm telling you, I'll give you a chance to speak. Let this debate continue. This is also very important. What do you want? Now, what do you want? Now, tell me what you want. What do you want? Yes, I'm giving you an opportunity, but after this,
I will give you an opportunity. Please take your seat. Yes, Lalji Tandon ji, आप बोलिए। मैडम, जो रेल बजट के पहले जो प्रतिवेदन पेश किया था रेल मंत्री ने, उसमें yes, please go back. Please go back. Please go back. I will give you an opportunity. Yes, yes. Yes, yes. We will give you. Yes, please. Yes, please, please, please. We will give you a chance. Come, come. Yes, kindly take your seat. We will give. I'll give you an opportunity. Yes, yes. Yes, please, please take your seat. Kindly take your seat. Kindly take your seat. Thank you so much. Yes, I will give you a chance to speak. Yes, लालजी टंडन जी, आप महोदय, मैं कह रहा था कि सदन में जो आश्वासन दिए जाते हैं सरकार की तरफ से, बजट में बहुत सी बातें घोषित की जाती हैं, लेकिन उसका अंजाम क्या हो रहा है, हम इन मौकों पर उन बातों पर विचार करना जरूरी समझते हैं। बहुत सी बातों की घोषणा की गई, लेकिन मैं केवल मूल रूप से कुछ बातें बताना चाहता हूं कि जो रेल बजट में घोषणा की गई थी, यात्रियों की सुविधाएं, साफ और सफाई, रेलवे खान-पान की गुणवत्ता, संरक्षा और सुरक्षा, समय का पालन। अब इन सबको अगर आप देखें तो इनकी उपलब्धियां जो हैं, वो 100 दिन के लिए जो वायदा किया गया था वो कई सौ दिन हो गए, लेकिन वो अभी तक उनमें से कहीं भी कुछ नहीं हुआ। जो भी नई बात घोषित की गई है उसको कहीं भी हकीकत में दिखाई नहीं देता। दुरंतो ट्रेन की बात की गई थी। दुरंतो का अर्थ जनता ने यह लगाया था कि एक नई ट्रेन कहीं से शुरू होगी और कहीं पर जाकर खत्म होगी, बीच में नहीं रुकेगी। लेकिन मजाक क्या हो रहा है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। लखनऊ से एक डुप्लीकेट लखनऊ मेल चलती है, वो बहुत दिन से दिल्ली यूएस में चल रही है, काफी दिन वो चल रही है, सफल हो रही है, यात्री भरकर जा रहे हैं, फिर भी जगह नहीं मिलती। उसे हर हफ्ता बढ़ा दिया जाता है। एक हफ्ते के लिए बढ़ाई गई, फिर रुक गई, फिर एक हफ्ते बढ़ाई गई, फिर रुक गई। अब उसी को दुरंतो घोषित कर दिया गया। क्या मिला? वो तो अगर वो यूं ही चलती तो दुरंतो के समान वो ट्रेन स्वयं है, उसको आप खत्म करके नाम बदल दे रहे हैं और नई ट्रेन देने की कहीं नहीं, ये सब जगह हो रहा है। क्यों ये वादा किया गया? उपलब्धियों की जहां तक बात है कि बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, लेकिन जो हमारी सफलता है 2008-9 की मैं बता रहा हूं कि गेज परिवर्तन में लक्ष्य रखा गया था 2150 किलोमीटर और लक्ष्य प्राप्त हुआ 563 किलोमीटर। ये जो सप्लीमेंट्री बजट होते हैं, इनका औचित्य क्या है? जब मूल बजट जो है उसमें जो लक्ष्य रखा गया और उसके बाद रिवाइज बजट में भी रखा गया और जो लक्ष्य प्राप्त हुआ वो इतना है कि 2150 की जगह 563। इसी तरह जो डबल लाइन बनाने की बात थी, इसमें 2008-9 में 1000 किलोमीटर रखा गया था, जिसका लक्ष्य प्राप्त हुआ 363 किलोमीटर। पुल निर्माण के लिए 1656 नंबर बनने थे, 1388 बने, को अभी अधूरे पड़े हुए हैं। मैं
जिस क्षेत्र से आता हूं, मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान उधर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ा लखनऊ का ओवरब्रिज बन रहा है, साल भर से रुका हुआ है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट को बनाना था वो पिलर्स बन गए, जो रेलवे को अपना काम पूरा करना था वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? रास्ता बंद है, ट्रैफिक का जाम लग रहा है, जिसके लिए बनाया जा रहा है वो लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है। कब होगा कोई जानता नहीं, कोई उत्तर देने वाला अधिकारी नहीं है जो ये बता सकता हो कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये सारी चीजें समझने की बात होती है। सरकार की कंटिन्यूटी नहीं है। जब श्री नीतीश कुमार जी यहां रेल मंत्री थे, लखनऊ में मल्लौर में एक नया रेलवे टर्मिनल बन रहा था, और उसके बाद हमारी वर्तमान रेल मंत्री जी उनके स्थान पर हुई, इन्होंने भी लखनऊ में उसकी घोषणा की, उसमें काम शुरू हो गया। लखनऊ की सबसे कीमती जमीन, मैं उस समय मंत्री था, मैंने एक्वायर करके दे दी, लाइन पड़ गई, मटेरियल गिर गया, काम बनना शुरू हो रहा था, और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो कहां वो सारी योजना चली गई, कहीं उसका कोई पता नहीं है। मैंने एक पत्र भी लिखा था माननीय मंत्री जी को कि आप इसको देखें कि आपने स्वयं घोषणा की थी जब आप इसके पहले दूसरी सरकार में रेल मंत्री थी, उसका शिलान्यास हो गया, उसका आधा काम हो गया, फिर क्यों रुका पड़ा हुआ है? कोई उत्तर नहीं। पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार, पंचवर्षीय योजना यह है, इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रथम 2 वर्षों का लक्ष्य यानी 2000 लक्ष्य रखा गया था और नई लाइन डालने का। 2 वर्ष में अगर औसत पड़ता तो 800 आता 2 साल का, लेकिन लक्ष्य प्राप्त हुआ 527। गेज परिवर्तन 10,000 किलोमीटर, प्राप्त हुआ 2189 किलोमीटर। दोहरीकरण लक्ष्य था 6,000, प्राप्त हुआ 874। मानवर मुझे खेद है कि मैं जब ये सारी बात बता रहा हूं तो रेल मंत्री जी वॉकआउट कर रहे हैं। नहीं, ये प्रोग्रेस में Minister is there. Yes. Minister of State is here. जा रहे हैं. She is coming. इसी तरह इलेक्ट्रिफिकेशन का था, 3500 किलोमीटर होना था, 1299 हुआ, जबकि इससे कहीं ज्यादा होना चाहिए था। 6000 में 874 किलोमीटर दोहरीकरण हुआ है, जबकि 2400 होना चाहिए। ये हमारी उपलब्धियां दर्शा रही हैं जो सामने हैं। बार बार ये घोषणा हो रही है कि प्राइवेट और पार्टिसिपेशन में हम नई नई योजनाएं बना रहे हैं। ये भी हमारी नीति का कहीं ना कहीं असफलता है कि वो सफल नहीं हो रही। जो योजनाएं उसके अंतर्गत चल रही हैं कहीं पूरी नहीं हो रही है, ना कहीं हॉस्पिटल बन रहे हैं, ना कहीं वो वर्ल्ड लेवल के जो स्टेशन बनाने हैं, उसमें मॉल्स बनाने हैं, उसमें रेस्टोरेंट बनाने हैं, उसमें होटल बनाने हैं, क्या क्या बनाना है, कहां हुआ? कोई भी तीन सरकारों ने जिन जिन योजनाओं की बराबर घोषणा की, इस बार भी की गई, लेकिन वो कहीं आज तक उनमें शुरुआत नहीं हुई। 3 साल के अगर आप बजट के लक्ष्य देखें तो जो एक्चुअल खर्च हुआ है और जो बजट में अलॉटमेंट था उसके मुकाबले में कहीं कम खर्च हुआ। इसका मतलब यह है कि विकास का काम नहीं हो रहा है, और बजट में जो फिगर्स दी जा रही हैं वो लोगों को प्रलोभन देने के लिए, एक सब्ज बाग दिखाने के लिए
कि सरकार इतना कुछ करना चाहती है, लेकिन जो उसका उपलब्धि है जब उस पर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी चीजें हम गलत दिशा में जा रहे हैं। अभी यहीं पर मान्यवर इसमें अभी जो अनुपूरक मांगे हैं उसमें एक मांग ये भी है कि जहां पर मानव रहित लाइन है, रोज वहां बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, आवश्यकता भी है, वहां पर मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन 19वीं शताब्दी के जो व्यवस्था है वो 21वीं शताब्दी में वैसे ही चल रही है। हम उसमें पेवन लगा रहे हैं, हम वहां कहीं पैचेस में बना रहे हैं। हमारे लिए आज तक कोई एक लक्ष्य सामने नहीं है कि क्या हमें करना है, ये 21वीं शताब्दी में रेल का क्या होगा। कहीं लाइन पड़ जाएगी, कहीं पुल बन जाएगा, कहीं अधूरा पड़ा रहेगा, कहीं घोषणा होकर शुरू नहीं होगा, कहीं शिलान्यास हो जाएगा, लेकिन कोई उसका पुरस्कार नहीं होगा। अभी जो रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी है उसकी रिपोर्ट में है, सदन में पेश हो चुकी है कि कितनी योजनाएं ऐसी हैं कि 10 साल में बार बार इस सदन में घोषित की गई, हर सरकार ने घोषित की, लेकिन वो वही की वही है। अभी उनमें कितनी पूरी हुई, कितनी खत्म हो गई, कितनी नई जुड़ गई, कोई मतलब नहीं, कोई समीक्षा नहीं। कौन करेगा? यही अवसर होता है कि सरकार को ये बताने का कि हकीकत आपके जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये है, और जो जमीनी हकीकत है वो इससे भी भिन्न है। खान पान के बारे में इतना हमें स्वप्न दिखाया जाता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं माननीय सभापति जी। मैं यहां से एक बार काशी विश्वनाथ से लखनऊ जा रहा था। मैंने कहा कि मैं जरा देखूं कि यहां खान पान में कुछ सुधार हुआ कि नहीं। वो एक वेटर था, उससे मैंने पूछा कि भैया तुम्हारा मेनू क्या है, तो उसने एक 12 तरह की बिरयानी गिना दी। मैंने कहा कि और कहीं कोई रोटी है, दाल है, कुछ और है। सब ये टाइम जरूर है लंच का, लेकिन इस वक्त लंच बनता नहीं है, बिरयानी जैसी कहिए दे दे। और गिना दिया उसने कि मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी, पनीर बिरयानी, जो कहें उस तरह की बिरयानी आपको दे देंगे। मैंने कहा अच्छा। फिर बोला 5 बजे आपको सूप मिलेगा। बाद में जैसे वो कैंटर में लेके चाय चिल्लाते हुए लोग घूमते हैं, ऐसे सूप 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 निकल गया। मैं एमपी हूं, मैं रेलवे कमेटी स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी हूं, और उसे मालूम भी है। बाद में शाम को उसने चाय और वो भेजा, उसके साथ नमक और काली मिर्च थी। मेरे साथ जो बैठा था उसने गौर से देखा, जो काली मिर्च का पाउच था वो 2 साल पहले उसकी एक्सपायरी डेट थी। अब क्या हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है? 2 साल पहले जो एक्सपायर हो चुका मसाला वो सर्व किया जा रहा है वीआईपीज को। फिर आम आदमी की क्या दशा होगी? कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा। खाना बहुत गंदा हो गया, खाना खाने लायक क्या? अब इसमें जो मांग मांगी गई है कि मानव रहित जो रेल संपार है उसके ऊपर नियुक्तियां की जाएंगी। 2710 लगभग 2700 मान लेंगे पद और मांगे गए। इसी सदन में माननीय राज्यमंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था कि पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सिर्फ उत्तर रेलवे में 19,000, पूर्व मध्य रेलवे में 17,000, मध्य रेलवे में 11,000 और दक्षिण मध्य रेलवे में 10,000, यानी इतने पद रिक्त हैं। इसमें ये और जुड़ जाएंगे। बैकलॉग इसके अलावा होगा, और जो जितना हम नई नई बातें कह रहे हैं उसके लिए और स्टाफ की जरूरत और होगी। ये कहां जाएगा? एक तरफ मूल्य वृद्धि के कारण
योजनाएं विलंबित हो रही हैं, उनकी जो ओरिजिनल लागत है वो बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ छठा वेतन आयोग लागू होने के बाद इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा और बढ़ा है। तीसरी तरफ रेवेन्यू कम हो रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है, ट्रेनें ओवरफ्लो चल रही हैं, स्टेशन पे मेले लगे हुए हैं, लोगों को गाड़ियां नहीं मिल रही हैं, रेवेन्यू कम हो रहा है। ये दोनों चीजें कैसे एक साथ हैं? अगर पैसेंजर्स कम हैं तो आमदनी कम होगी, रेलों की मांग कम है तो आमदनी कम होगी। जब पैसेंजर जरूरत से ज्यादा है, ओवरलोड चल रही है ट्रेनें, उसके बाद हमारा रेवेन्यू कम क्यों हो रहा है? मुझे आश्चर्य हुआ कि जब यह पता कि जो रेलवे की संपत्ति है उसमें जो भूमि है उसके लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है, जो चाहे कब्जा कर ले। प्लीज प्लीज कंक्लूड। अब इस विषय पर तो माननीय मुझे कुछ कहना होगा ना। बहुत मेंबर बोलने के लिए है। ये आप तो 15 मिनट ही ले लिए। नो प्लीज कंक्लूड। जो दशा रेलवे की है उस पे मैं ठीक है बीत गया सर। मैं तो सिर्फ आपको पॉइंट बता रहा हूं। अगर मैं डिटेल बताना शुरू करूंगा तो मुझे चाहिए 2 घंटे, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको एक बिंदु बता रहा हूं कि वो मानी रेल मंत्री जी उसको नोट करें, उससे दूर करने की कोशिश करें। I understand from BJP party there are 16 members to speak. 16 members to speak from your party. So you have to ration the time. लखनऊ और आगरा के बीच में एक इंटरसिटी ट्रेन चलाने के लिए 3 मंत्रियों ने इस सदन में घोषणा की, अब की भी की गई, लेकिन कहां है वो कहां आदर्श है? उसमें क्या प्रगति हो रही है? अगर हम बजट के वक्त में जो बजट हमने इस सदन ने पास किया है उस बजट की निगरानी करना भी इस सदन का काम है। अगर हमारे सामने ये वादा किया गया है तो वादा अगर पूरा करने में कोई कठिनाई है तो वो भी सदन के सामने आना चाहिए। क्यों नहीं हो रही है? अगर किसी की इसमें शिथिलता है तो वो दंडित होना चाहिए। सदन का अर्थ यह है कि मैं यहाँ आपकी अनुकंपा से बोल रहा हूं, मैं यहाँ सदन का सदस्य हूं, मैं जनता के बीच से आता हूं, मैं वो भी देख रहा हूं जो हो रहा है स्टेशन पे, मैं वो भी देख रहा हूं कि जो इस सदन में घोषणाएं हो रही हैं, और मैं ये सरकार के ही आंकड़े बता रहा हूं, ये उपलब्धियां हैं। इसमें वो औचित्य क्या है? क्या नीति कब बनती है उसका एग्जीक्यूशन नहीं होता और दूसरी आ जाती है। यह भी पता नहीं लगता कि पहले वाली खत्म कर दी गई हो। जैसे एक आदेश किया गया रेलवे बोर्ड से कि जो गार्ड हैं उनको एक बड़ा बक्सा पहले लेके जाना होता था, उनको किट ले जाने के लिए एक छोटा किट दे दिया गया कि वो लेकर जाएंगे, और उसके लिए 150 रुपया उन्हें एक्स्ट्रा अलाउंस की भी घोषणा हो गई। अब मैं देख रहा हूं कि कुछ जगह ये चल रहा है और नई जगह ठेकेदारी की प्रथा शुरू कर दी। तो जिनको 150 रुपए की घोषणा की गई वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो ठेका दिया जा रहा है उसमें कोई लाभ होने वाला है या नहीं? एक ऐसी मजबूर स्थिति दिखाई दे रही है कि माफिया रेलवे के सारे संसाधनों के ऊपर कब्जा किए, लेकिन रेल अथॉरिटी कहती है कि हम हेल्पलेस हैं, हमारे पास कोई ऐसे कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई माफिया जो है वो ठेका नहीं ले सकता, कोई माफिया स्क्रैप नहीं खरीद सकता, हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। हेल्पलेस है। अगर वो 100 रुपए की चीज 10 रुपए में लेना चाहते हैं तो रेलवे मजबूर है उन्हें 10 रुपए में देने के लिए। आखिर ये मजबूरी क्यों है? आज सिक्योरिटी बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है। ये कई बार बात आई है कि हमारी कई तरह की फोर्सेस हैं। रेलवे की एक सुरक्षा एजेंसी बननी चाहिए जिसके ऊपर सीधे रेलवे का नियंत्रण हो। स्टेट गवर्नमेंट से तो मिलती हैं, उनका नियंत्रण स्टेट गवर्नमेंट पर है। कोई आदमी ठीक कर रहा है
स्टेट गवर्नमेंट उसे 3 महीने में ट्रांसफर कर देती है। यहां पर कोई सिस्टम ऐसा बने कि जीआरपी, आरपीएफ ये सब एक में मिलकर एक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बन जाए, जिसका पूरा नियंत्रण रेलवे के बोर्ड के अधीन हो, रेल मंत्री के अधीन हो। तब उसकी कोई आज सुरक्षा केवल यही नहीं है कि जो डिब्बे में यात्री यात्रा कर रहे हैं उनके जान माल की, आज सुरक्षा कई तरह से हो रही है। ट्रेनें जलाई जा रही हैं, किडनैप हो रही हैं, कहीं पर कोई हेल्प करने के लिए है नहीं। कहां से फोर्स आएगी, तब तक क्या हो जाएगा। रेल का इंजन खोलकर कोई लिए जा रहा है, डिब्बे बाहर खड़े हुए हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। ऐसी विषम स्थितियों में कुछ जरा कठोर फैसलों की जरूरत है। जो नीतियां घोषित की गई हैं उन्हें लागू करने की जरूरत है। मैं प्लीज ऑनरेबल मेंबर प्लीज कंक्लूड। मैं ये कोट कर रहा हूं, इस सदन में पेश हो चुकी है कमेटी की रिपोर्ट, उसका एक पैरा है। When asked about the reasons for the non-realization of earning from commercial exploitation of railway land, due to which the target was revised downward, ये अधिकार किसने दे दिया कि बजट में जो रखा गया रिसोर्सेज हुए नहीं तो अपने आप कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। ये रिड्यूस करने का अधिकार किसे है? जिसने बजट पास किया है उस संस्था को है या मंत्रालय को है या बोर्ड को है या किसी एक अधिकारी को है? ये कैसे हो रहा है? ये एक अराजकता की स्थिति है। प्लीज कंक्लूड प्लीज। Ministry of Railway informed the committee as follows. Target was revised downward from rupees 2300 crore to rupees 500 crore due to economic slowdown and slump in commercial and real estate sector. All efforts are being made for better realization of earnings from commercial exploitation of railway land. 12 sites have been identified for finalization of contract for commercial development during 2009 and 10. ये उस कमेटी का एक पैरा है जो मैंने पढ़ के सुनाया। ठीक है, प्लीज कंक्लूड नाउ प्लीज। मैं एक बात फिर दोहरा देना चाहता हूं कि सरकार की कंटिन्यूटी होती है। जो घोषणाएं की गई हैं, ये कमेटी की रिपोर्ट में यह भी है कि 10 साल से इस सदन में लगातार घोषणाएं की जा रही हैं बहुत सी योजनाओं की, और वो आज भी घोषित की गई हैं। उनका कोई पता नहीं है। उन्हें देखना चाहिए, या तो खत्म करें वो नहीं हो सकती, या उन्हें पूरा करने का कोई टाइम फेज तय करें। कुछ भी तो होना चाहिए। इसी तरह थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। प्लीज कंक्लूड बिकॉज योर मेंबर्स वोंट गेट टाइम। इफ यू टेक मोर टाइम योर मेंबर्स ऑनरेबल मेंबर्स अगर मैं इस सदन के उपयोग के लायक कोई बात नहीं बोल रहा हूं तो मैं आपकी आज्ञा नहीं, आप तो अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन बहुत मेंबर है, आपकी तरफ से बहुत मेंबर है।